तो आज का टॉपिक है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. So the question is, the age of A and B are in ratio of 5:7. 5 years ago their ages were in ratio 5:8. So the respective present age of both A and B, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो हम पहले कर देंगे लेट प्रेजेंट एज बी एक्स एंड वाई. अब अगर हमारी एज आज 20 है तो वो 5 साल पहले कितनी होगी? 15. सो 20 - 5. तो हम आज की एज में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारी एज आ जाएगी 5 years अगो. सो एज 5 years अगो, x - 5, y - 5. So now the equation becomes x by y is equal to 5/7, which is equal to 7x is equal to 5y and x is equal to 5/7y. The next equation becomes x minus 5 upon y minus 5 is equal to 5/8, which becomes 8 into x minus 5 is equal to 5 into y minus 5. So 8x minus 40, 5y minus 25. So 8x minus 5y is equal to 15. 40 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा और ये तो माइनस में है तो 15. सो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में डालेंगे. जो x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, हम x की वैल्यू पूरी उठा के इसमें डाल देंगे. सो 8 into 5y/7 minus 5y is equal to 15. So 8 5s are 40, y minus 7 into 5y upon 7 is equal to 15. So 40y minus 35y, 7 5s are 35. So 5y, 15 into 7 is what? 5 7s are 35, 105. So y is equal to 21. So what will be the value of x? 5 into 21/7, 15. So the age of A is 15 and the age of B is 21. These are the final answers. So the next question is, the ratio of present ages of A and B is 1:2, and 5 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 7 years? So present age B, let present age be x and y. Okay. Age 5 years ago. X minus 5, y minus 5. Age after 7 years. X plus 7, y plus 7. Now the ratio of present age is 1:2. So 2x is equal to y. 5 साल पहले जो एज थी उनका रेशियो भी दिया हुआ है 1:3. x minus 5, y minus 5, 1:3. इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3x minus 15
इज इक्वल टू y माइनस 5। सिंप्लीफाई कैसे किया, 3 को हम इधर ले गए और इसको हम इधर ले गए, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 3x माइनस y is equal to 15 minus 5, 10. So now put the value of y in this. So 3x minus 2x is equal to 10. So the value of x is 10 and value of y becomes 2x which is 20. तो ए और बी की प्रेजेंट एज तो आ गई जो कि 10 और 20 है, लेकिन हमसे पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 7 years। तो 7 साल बाद एज क्या होगी, x प्लस 7 y प्लस 7। So 10 plus 7 is 17, 20 plus 7 is 27. So the ratio becomes 17/27. So the next question is, a person was asked to state his age. His reply was, take my age 3 years hence, multiply it by 3, subtract the triple of my age 3 years ago, and you will know how old I am. So let his, सबसे पहले present age let कर लो, let his present age be x. Take my age 3 years hence. Age 3 years hence. Hence मतलब after 3 years. X plus 3. Multiply it by 3. Okay, कर दिया. 3 into x plus 3, 3x plus 9 कर दिया. Subtract the triple of my age 3 years ago. Age 3 years ago. X minus 3. Subtract the triple of my age. इस एज का भी ट्रिपल, 3x minus 9। अब हमें सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, मतलब इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x plus 9 minus 3x minus 9. 3x plus 9 minus 3x minus minus becomes plus. Minus plus. Minus minus is equal to plus. Minus plus is equal to minus. Plus plus is equal to plus. So this cancels out and the age is 18 years old. 9 plus 9, 18. So next question is, Ram's present age is thrice his son's age and 2/5 of the present age of his father. The average present age of all of them is 46. We need to find the difference between Ram's father's age and his son age. So अब इसमें 3 लोग हैं, एक राम खुद, एक राम का बेटा, एक राम के पिताजी। तो 3 लोग हैं, अगर हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं x, y, z, तो हमारी इक्वेशन कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हमारी 3 वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी। अब 3 वेरिएबल सॉल्व करना इज लाइक वेरी हेक्टिक। तो हम सबसे पहली चीज माइंड में ये क्लिक करेंगे कि हम सिर्फ 1 वेरिएबल इक्वेशन बना पाए। तो पहली चीज माइंड में ये आए कि हम 1 वेरिएबल क्वेश्चन या इक्वेशन बना पाए सिर्फ। सो वी कैन लेट द सन्स एज बी। हमने सन की एज ले ली, प्रेजेंट एज ले ली हमने उसकी एक्स, ये हमने लेट किया है।
अब राम की जो प्रेजेंट एज है इट इज थ्राइस हिज सन्स एज, तो राम की प्रेजेंट एज ऑटोमेटिकली बन गई 3x। अब एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये भी है, राम्स प्रेजेंट एज इज थ्राइस हिज सन्स एज एंड 2/5 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है, तो राम की प्रेजेंट एज अगर 3x है और ये अगर इक्वल है 2/5 ऑफ फादर, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की एज इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, 5 into 3x/2, 15x/2। सो फादर की प्रेजेंट एज हो गई हमारे पास ये, तो हमारे पास एक ही वेरिएबल चलता आ रहा है एक्स एक्स एक्स, हमने तीनों को एक्स के टर्म्स में लिख लिया। सो ना हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि तीनों का जो एवरेज है, प्रेजेंट एज का जो एवरेज है वो 46 है। अब हम किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं तो हम ऊपर डालते हैं सम अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर यहाँ पे 3 लोग हैं तो हम तीनों की प्रेजेंट एज का सम करेंगे डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 लोग हैं। सो x प्लस 3x प्लस 15x/2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन बन गई, ये सॉल्व करते ही हमारे पास x आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, सब आ जाएगा, तो हम डिफरेंस बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सो दिस बिकम्स, अब इसके पास 2 है, सो ये 2 हमारा इन दोनों के पास भी जाएगा बिकॉज वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। 2 सिर्फ इसके पास है तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। सो दिस बिकम्स 2x प्लस 6x प्लस 15x अपॉन में 2, और ये वाला 3 चला जाएगा इधर, 138। 3 into 46 is 138। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 x इज इक्वल टू, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 8 16, 2 3 6 7 2 276। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 276/23। 23, पता नहीं भाई क्या होती है अभी, 46, 23 2 जा 46। सो बच्चे की एज आ गई हमारे पास 12। अगर बच्चे की एज है 12 तो राम के पिताजी की एज होगी 15 into 12/2 which is 15 into 6, 90। तो हमें 90 - 12 निकालना है। राम के फादर की एज इज 90, राम के बेटे की एज इज 12, सो द डिफरेंस इज 90 - 12, 78 years। Answer. Next question is based on a formula. So it states that if a cube minus b cube is equal to 208 and a minus b is equal to 4, then find the value of a plus b whole square minus ab. So a cube minus b cube is equal to 208. There is a formula, a cube minus b cube, a minus b, a square plus ab plus b square. So according to this, it becomes a minus b, a square
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 208। इसकी वैल्यू हमें गिवन है a माइनस बी इज 4, सो 4 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 208। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ जाके डिवाइड हुआ वो 4, तो बन गया 52। ठीक है, ये हो गया। अब हमें जो निकालना है हम उस पर आ जाए, क्योंकि हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ये आ गया तो हमें यहाँ पे इसे छोड़ना पड़ेगा। तो अब हमें देखना कि अच्छा हम आगे क्या कर सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ लग सकता था, फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। फॉर्मूला तो याद करने पड़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के, देखो उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो तो याद करने ही पड़ेंगे, तभी इजीली हो पाएगा क्वेश्चन। तो अब यहाँ हमने लगा दिया, अब हम यहाँ लगा के देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी तो है, सो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 2ab में से एक ए बी तो चला गया, माइनस हो गया, तो बच गया हमारे पास ए बी। तो इसकी और इसकी वैल्यू तो सेम ही है, which is equal to 52. So this is the answer. मतलब मान लो ये इधर है, ये इधर है, हमें दोनों को इक्वल करना है। कि इसकी वैल्यू तो पता है, बट इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब हम इसे आगे कुछ नहीं कर सकते। अब हमें दिख रहा है कि भाई फॉर्मूला तो यहाँ भी लग रहा है, तो हम यहाँ भी लगा के देख लेंगे। अब दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, तो वो भी 52 ही बन गया। सो दैट इज इट। सो दिस इज इट फॉर दिस पार्ट। इसके बाद 2 शॉर्ट्स आएंगे जिसमें शॉर्टकट ट्रिक्स होंगी of how do we convert bar to proper fraction or how do we convert mixed fraction to improper fraction। इसके शॉर्ट्स चलेंगी and we will see you in our next part।